بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دیکھنے سننے والوں کو پوری دنیا میں، یورپ، اوورسیز، پاکستان، مڈل ایسٹ، جہاں جہاں بھی ہیں، ابرار میر کا پیار بھرا اسلام. قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ. ہم نے کچھ عرصے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم پاکستان سے ٹاپ کے جن کو، اور جو کنٹروورشل بھی نہیں ہے، اور جنہیں لوگ اکیڈمی کہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ہم لا کے، صحافت کی اکیڈمی وہ ہم برج بننا چاہ رہے ہیں کہ اوورسیز میں جو کمیونٹی ہے ہماری، وہ ڈسکنیکٹڈ سمجھی جاتی ہے. اس میں ہم برج کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور آج جس شخصیت کو میں ابھی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، ان کا کل سے میں نے اناؤنس بھی کیا ہوا ہے. ان کے بارے میں مطلب میرے جیسا بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بڑے بڑے صحافی جو بڑے قداور جگادری، وہ بھی ان کو اپنا استاد مانتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. وہ اپنی ذات میں خود صحافت کی ایک اکیڈمی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو کہ ایک زرداری سب پہ باری، تو یہ صحافت میں ان کو کہتے ہیں کہ ایک لغاری سب پہ بھاری. آج ہمارے لیے آنر ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بولڈ نیٹ ورک کے پریزیڈنٹ اور ایڈیٹر ان چیف، جنہوں نے صحافت میں بڑی مار کھائی، لوگوں کو سکھایا، جمہوریت کے لیے مار کھائی اور صحافت اور جمہوریت کے لیے برج بنے. وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کو سامنے لا کے اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دیکھنے سننے والوں کو سلام دعا کریں اور اپنا پیغام دیں، اور اس کے بعد پھر ہم آج کے موضوع پہ وہ بات شروع کریں گے. جی السلام علیکم لغاری صاحب، ویلکم سر. جی جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. جی سر، آپ پیغام آپ کا پلیز. یہ تھوڑا سا کمیونیکیشن پرابلم ہو رہا ہے، مجھے بعض دفعہ آواز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ کو میری آواز صاف طور پر سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے سر، بالکل آ رہی ہے. جی اب آپ ارشاد فرمائیں، آپ سوال کریں گے؟ نہیں، آپ کو دیکھنے سننے والے اس وقت آپ ان کے ساتھ لائیو ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا کر لیں. جو میں نے آپ کا تعارف کرایا ہے اس سلسلے میں صحافت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، پھر آگے سوال جو آپ شروع کریں گے سر. تمام دیکھنے والے سننے والے ساتھیوں کو، دوستوں کو، سامعین کو جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میرا سلام. میں ایک بہت ہی حقیر، بہت ہی کم مایہ، بہت ہی ایک عام سا آدمی ہوں. میں صحافت کی دنیا کا ایک شاگرد ہوں. صحافت، سیاست، تاریخ، یہ میرے موضوعات ہیں. اور میرا کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہے جس پر میں کہوں کہ جی یہ میں نے کوئی تیر مارا ہے. ایک چھوٹا سا حصہ ہے میرا. میں نے صحافت پر اب تک میری کوئی 7 کتابیں ہیں. ایک ادب پر ہے، اور 6 کتابیں جو ہیں وہ میری ایک سفرنامہ ہے، اور 5 کتابیں جو ہیں وہ میری صحافت پر ہیں. اور ان کتابوں میں سے میں نے رینیسانس پیریڈ کے یورپ کے بڑی شخصیات جو ہیں ان کے خطوط جمع کیے. بلکہ اس دور میں جتنے بھی، اور ایشیا میں، افریقہ میں اور دیگر ممالک میں بڑی شخصیات تھی، ان کے نجی خطوط جمع کیے. کوئی لگ بھگ 60 افراد کے شخصیات کے خطوط ہیں. ان خطوط پر مشتمل ایک کتاب ہے. اور آپ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے، لگ بھگ تمام ہی لوگوں کو جانتے ہوں گے. ان میں سے چند ایک کا میں بتا دیتا ہوں کہ ابراہم لنکن کے خط میں نے چھاپے، جان ڈیمس کے خط چھاپے میں نے. اس کے علاوہ ہٹلر کے خط ہیں، ہیڈگر کے خط ہیں، مارکوزے کے خط ہیں. اس کے علاوہ جینی مارکس کے خط ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر شخصیاتیں، فلسفی ہیں. ایمانوئل کانٹ کے پرسنل خطوط ہیں، ہیگل کے پرسنل خطوط ہیں.
नेपोलियन के पर्सनल खतूत हैं, वाल्टियर के पर्सनल खतूत हैं, लुई 16 जो आखिरी फ्रांस का बादशाह था उसकी बेगम का मलका के पर्सनल खतूत हैं जो उसने अपनी सजाए मौत से पहले और सरकारी तेज धार कुल्हाड़े से कत्ल होने से पहले उन्होंने एक खत लिखा था अपनी नंद को। वो खत है स्कॉटलैंड की मलका मैरी स्टुअर्ट का के खत हैं। तो यूरोप में बहुत से लोगों के, माओ ज़ेतुंग के हैं, यहाँ से एशिया से चुएन लाई के खत हैं, हो ची मिन के खत हैं, पाकिस्तान से कायद आज़म के खत हैं, अल्लामा इकबाल के खत हैं, अदब में से कुरतुल ऐन हैदर के खत हैं, सियासत में से भगत सिंह के खत हैं, रसूल वक्त पलीजू के खत हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के खत हैं। ऐसे बहुत से दीगर शख्सियात हैं। तो खतूत पर मुश्तमिल सैकड़ों, कहा जा सकता है कि सैकड़ों खतूत होंगे, हज़ारों भी हो सकते हैं। तो मैंने उन खतूत का तर्जुमा किया उर्दू में और उन्हें पेश किया। इसके अलावा मैंने सहाफ़त में ये कि मैंने एक ज़माने में कोई आज से 30-35 साल पहले उस वक्त की सियासी लीडरशिप के इंटरव्यूज़ किए थे अखबार जहां के लिए। ये ज़माना था जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी में ये सारे इंटरव्यूज़ छपे थे और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरी अपनी भुट्टो साहब के साथ जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से अपनी मुलाकातें, बेगम नुसरत भुट्टो से अपनी मुलाकातें, उनका अहवाल है। मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दौलताना का इंटरव्यू है, खान अब्दुल वली खान का इंटरव्यू है, मीर गौस बख्श बेजंजो का इंटरव्यू है, नवाब अकबर बुगटी का इंटरव्यू है, उस GM सैयद का इंटरव्यू है। तो इस तरह के बहुत सी बड़ी शख्सियात, 3 धारे हैं उसके अंदर। एक कम्युनिस्ट दोस्त हैं और एक वो दोस्त हैं जो मजहबी रुझान रखने वाले या मजहबी दीनी जमातों के सियासतदान हैं, उनके खतूत हैं। और लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं उनके भी खतूत हैं। तो उनके भी उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनके इंटरव्यूज़ हैं जो लिबरल डेमोक्रेट्स थे, जो कम्युनिस्ट थे और जो मजहबी शख्सियात थे। ये तकरीबन इसी तरह से तकरीबन 50-60 शख्सियात हैं जिनके इंटरव्यू मेरी किताब में है। पहली वाली मेरी किताब है जो उसका नाम तारीखी खतूत है, जिसका मैंने जिक्र किया है। ये दूसरी जो बता रहा हूँ ये तारीख साज लोग है। एक और किताब है जिसमें मैंने इंटरनेशनल शख्सियात के इंटरव्यू किए थे। वज़ीर आज़म इंडिया VP सिंह का इंटरव्यू था, वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद का इंटरव्यू था, वज़ीर आज़म नेपाल मनमोहन अधिकारी का इंटरव्यू था, सदर और वज़ीर आज़म श्रीलंका चंद्रिका कुमारा तुंगा का इंटरव्यू था। और उसके अलावा मैंने मुल्ला उमर का इंटरव्यू किया था। मुल्ला उमर के अलावा गुलबदीन हिकमत यार का इंटरव्यू किया था। गुलबदीन हिकमत यार के अलावा मैंने अहमद शाह मसूद का इंटरव्यू किया था। इससे भी 3 शख्सियात थी, बरतानिया से भी टोनी बैन का इंटरव्यू किया था और डेव एंड्रेसन का इंटरव्यू किया था, ये मेंबर पार्लियामेंट थे। और एक और शख्सियत जो है वो एंडी ब्रूक्स की है, जो बरतानिया की न्यू कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, इस वक्त भी वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये एक और किताब थी, तारीख बोलती है। मेरी एक और किताब जो है वो अरब दुनिया की ख़वातीन शायरात के बारे में है। एक शायरा खातून जो हैं वो हुजूर अकरम से पहले की हैं, एक हुजूर अकरम के अपने दौर की हैं, एक 1000 साल पहले की शायरा हैं, एक हुजूर पाक के फ़ौरन बाद के दौर की हैं, हज़रत राबिया बसरी। एक जो है वो अल फरीहा बिनते शद्दाद, फिर उसके बाद अल खनसा, फिर उसके बाद जो है वो अपना राबिया बसरी। उसके बाद एक और शायरा थी नाज़िकुल मला नहीं, एक और शायरा थी अल मुस्तकफ़ी, जो स्पेन के जब उंदलस होता था तो उस पर हुक्मरान जो थे आखिरी उनकी बेटी थी। उन्होंने 99 साल की ज़िंदगी पाई थी, 99 साल की ज़िंदगी पाई थी और उनके बड़े रुमानी शायरी थी, बड़ी इश्किया शायरी थी उनकी, उसका मैंने तर्जुमा किया था। फिर 20वीं सदी की बड़ी शायरात फिदवा तौकान का मैंने उनकी शायरी का तर्जुमा किया, नाजुकुल मलाइका की शायरी का तर्जुमा किया। फिर उसके बाद रफ़ीफ़ ज़ियादा हैं, मराम अल मसरी हैं, फ़ातिमा नाऊत हैं, उसके अलावा मराकेश से एक शायरा हैं डॉक्टर फ़ातिहा मुर्शिद। इस तरह से लगभग 20 ख़वातीन
शायरात हैं जिनके मैंने शायरी का तर्जुमा किया। मैंने एक सफ़रनामा बरतानिया, सऊदी अरब और मिस्र का एक सफ़रनामा लिखा, लेकिन वो सराइकी ज़ुबान में है। सीने झोंका दीदें दे रे, ये एक और किताब है मेरी। और मेरी जो शुरू में पहली पहली किताब छपी थी, ये बहुत अर्ली शायद 80s में छपी थी, वो भी इंटरव्यूज़ थे और जिसमें कई बड़ी शख्सियात के इंटरव्यू थे। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी इंटरव्यू था और उनके ससर का हाकिम अली जरदारी का इंटरव्यू था, मीर हज़ार खां बिजरानी का इंटरव्यू था, कमाल असफर का इंटरव्यू था। इस तरह से बहुत सी दीगर शख्सियात के इंटरव्यू थे। तो लगभग ये एक अदना सा हकीर सा ये तारुफ है मेरा। और मैंने सहाफ़त में कोई लगभग 45 साल हो चुके हैं। 45 साल पहले मेरा ज़िंदगी का शायद पहला आर्टिकल छपा था और उससे पहले मेरा नाम तो सहाफ़त में छप चुका था, लेकिन मेरा बाकायदा जो काम है वो 1975 में, आज से 45 साल पहले मेरा पहला आर्टिकल छपा था। उसके बाद मेरे आर्टिकल तवातुर से छपे थे। माहनामा अल इल्म था, एक रिसाला अंजुमन था, फिर हमारे दोस्त और बहुत मेहरबान दोस्त इरशाद राव का रिसाला होता था अल फतेह पीपल्स पार्टी का भी तर्जुमान था, और बाएं बाजू की सियासी जो हैरारकी थी उसकी भी नुमाइंदगी करता था। और उसके भी बड़े लोग थे, हुसैन नकी साहब, और उसके इदारा तहरीर में थे जनाब शौकत सिद्दीकी साहब थे। मैंने भी उसमें लिखा, बड़े लोगों के साथ मेरा नाम भी उन दिनों में छपता था। और उसके बाद मैंने नवाए वक्त को, यहाँ से जब नवाए वक्त कराची आया तो फिर मैंने नवाए वक्त से शुरू किया। नवाए वक्त में मैंने मार्च, उसके बाद जब एमआरडी की मूवमेंट हुई, इस दौरान में हम लोग कुछ लाकअप में भी वक्त गुजारा, कुछ हम थानों की भी सैर करते रहे, और इस तरह से फिर जेलों में भी जाना हुआ और दोस्तों के साथ हमारी वहाँ पर मुलाकातें होती थीं। तो ये एक बड़ा ज़माना है जो गुज़रा। और सियासत की, सहाफ़त की हमारी इब्तदा थी, सियासत हमारा रुमान थी। और सियासत में ज़ाहिर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद को, बहुत लोगों की एक बड़ी तादाद होती थी जो भुट्टो साहब से इश्क करती थी। भुट्टो साहब एक पूरे अहद का रोमान थे, और उनका रोमान पिछले 50 साल में, बल्कि 50 साल से भी ज़्यादा अरसे में अब तक नहीं टूट सका है। जितनी भी कोशिशें की गई कि भुट्टो साहब को और भुट्टो साहब की लेगेसी को, या भुट्टो साहब की जो एक बड़ा नाम है, लोग उसको भूल जाएं, लेकिन लोग नहीं भूल पाए। भुट्टो साहब लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में अब भी जिंदा हैं, और उनकी तारीख साज कुर्बानी जो है वो अब भी जिंदा है। भुट्टो साहब के लिए ऑप्शन मौजूद थे, जैसे ये सबको मालूम है कि यासिर अरफात ने कहा था कि मैं आपको जेल से छुड़ा सकता हूँ। अब्दुल सलाम जालूद आकर एक हफ्ते तक यहाँ बैठे रहे थे, और कज़ाफ़ी ने कहा था ज़ियाउल हक को कि तुम जितनी भी हमसे चाहो हम वो देने को तैयार हैं, आप भुट्टो साहब को हमारे हवाले कर दें। वो ज़ियाउल हक ने बहरहाल तय कर लिया था कि वो भुट्टो साहब को बहरहाल फांसी पर लटकाएंगे, लेकिन भुट्टो साहब ने खुद कभी भी अपनी गर्दन झुकाने पर आमादगी जाहिर नहीं की। और इसलिए उनका लोगों का रुमान इसी वजह से था कि एक शख्सियत ऐसी जो कोई समझौतेबाजी कर सकती थी और अपनी ज़िंदगी को बचा सकती थी, उन्होंने समझौतेबाजी नहीं की, उनने गर्दन नहीं झुकाई, उनने सबमिट नहीं किया, उनने फांसी के फंदे को चूमा, और वो सरफराज हुए। और जानते हुए कि मैं जा रहा हूँ, उन्होंने ज़िंदगी में आखिरी खत एक गेस्टाप देस्तान के नाम लिखा था, जो फ्रांस के सदर थे। वो खत भी मैंने एक ज़माने में कहीं शाये किया था। तो एक बड़ी शख्सियत। फिर उसके बाद जो मूवमेंट थी सारी की सारी, एमआरडी की मूवमेंट, जमहूरी जिद्दोजहद, उस सारी जमहूरी जिद्दोजहद का हमने रिपोर्ट किया। हमने जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लगातार कई बरसों तक सेंसर का सामना किया, और सेंसर एक कैंसर की सूरत में पूरे मीडिया को लग चुका था। तो हम जनरल ज़ियाउल हक के सेंसर से लड़ते रहे। बल्कि उस ज़माने में सेंसर ऑफिसर इस हद तक जो है वो सेंसिटिव हुआ करते थे कि एक तहरीर थी
जिसमें लिखा था कि नौजवान ने पिस्तौल को चूमा और अपने सामने खड़े दुश्मन पर फायर कर दिया। तो सेंसर ऑफिसर ने कहा ये चूमा निकालें, ये जो है ये वल्गर है, ये नहीं चलेगा। फिर एक और जगह पर एक और लाइन थी, उसने कहा कि एक नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। तो सेंसर ऑफिसर ने कहा ये दिल पर तो चल जाएगा लेकिन दाश्ता नहीं चलेगा, ये निकाल दें, इसके इसके बगैर ही आपको पर्चा भेजना पड़ेगा। तो ऐसा ज़माना हमने देखा है जहाँ इस दानिश इस हद तक थी, जहाँ अकल और फहम इस तरह सोचती थी, जहाँ सोचने वाले लोग इस तरह से सोचते थे, जहाँ हुकूमत में बैठे हुए बहुत ही बौने लोग थे। जनरल ज़ियाउल हक का दौर पाकिस्तान की तबाही बर्बादी का दौर था। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 72 साल तारीख का बदतरीन दौर जो था वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। और उसके बाद भी बड़े बहुत ही बुरे अदवार आए हैं, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की जो बुनियादी साख थी, इस ज़मीन की, एक मिट्टी की, जो 5000 साल की रिवायात थी, उन सारी रिवायात को पामाल कर दिया। उस जनरल ज़िया ने हर चीज़ को तोड़ फोड़ के रख दिया था। और पाकिस्तान का जो बेसिक फाइबर था, जो लोगों को जोड़ के रखता था, जो लोगों को एक एक जगह पर रखता था, जो लोगों को एक एक रस्सी की तरह उन्हें साथ रखता था, उसको उसने तोड़ के रख दिया। लोगों के अंदर तंग नजरी को फरोग दिया, इंतहा पसंदी को फरोग दिया, और ऐसा लोगों को बोना बना दिया, उनको शादूले के चूहे का लोगों के अंदर दिमाग रखने की कोशिश की। जाहिर है पाकिस्तान की सारी आबादी को तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिन लोगों को किया वो लोग जहां भी हैं, वो या उनके बड़े जो थे वो जब भी थे, और अब उनके आल औलाद जहां भी हैं वैसे ही बोने हैं, वैसे ही कोताह नजर हैं, वैसे ही कोताह बी हैं, वैसे ही कोताह चश्म है। और बिल्कुल उनका कोई विजन नहीं है, पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते, मिट्टी की खुशबू से वाकिफ नहीं है, धरती की खुशबू से वाकिफ नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि वाखान के साथ लगा हुआ ये इलाका क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि कश्मीर क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि पंजाब क्या है, सराय की बेल्ट क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा क्या है, बलूचिस्तान क्या है, सिंध क्या है, ये सरजमीन क्या है, इसकी खसूसियात क्या हैं। तो बहुत ही बौने, बहुत ही कोताह कद लोग जो हैं वो सियासत पर छाए रहे, और छाए हुए भी हैं। हमने अपने हिस्से का बहुत ही कम था, हमारी बसात शायद इतनी थी, या फिर हम शायद इतना ही काम कर सकते थे। हमने जो है वो रोजी भी की, रोटी भी की, और उसके साथ साथ ये दुख भी अपने सर पर उठाए, और दुख की ये गठड़ियाँ लेकर हम जो है कूचाए सहाफत में सफ़र करते रहे। ये पूरे का पूरा हमारे सफ़र की एक दास्तान थी। जी जनाब अब्रार मीर साहब। जी, लगारी साहब, आपने माशाल्लाह जो हमतनम गोश दुनिया इस वक्त आपको देख सुन रही है, आपने सहाफ़त से बात शुरू की, अपनी बात शुरू की, फिर आप जमहूरियत की उस मेराज तक बात ले गए, जमहूरियत के जो अलम बरदार तब ताब जावदाना जिनका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसी के साथ साथ आप आमरीत का भी जो एक बदनुमा दब्बा ज़ियाउल हक उसका भी जिक्र किया, क्योंकि जहाँ अच्छाई हो, जहाँ हुसैनियत होती है वहाँ यजीदियत भी होती है। तो ये आपने बड़ा बड़ा पैरेलल वो किया। एक आप भट्टो साहब पे एक और बात करें, अभी तो हमने आगे बहुत बातें करनी है, फिर हम बीबी शहीद पे जाएंगे। आप अक्सर कहते हैं कि आज के तनाजुर में कि भट्टो साहब में अगर मगर नहीं होती थी, वो डिसीजन लेते थे, खड़े हो जाते थे। इसके बारे में कुछ बताएं। भुट्टो साहब एक बात यह है कि बहुत ही सोच विचार करते थे वो, इतना ज़्यादा मुताला करते थे, हमें हैरत होती थी कि वो इतना ज़्यादा इतना वसी मुताला कैसे करते हैं, उनके पास इतना वक्त कहाँ से आता है। कुदरतुल्लाह शाहब ने लिखा है शाहबनामे में कि मैं इसका प्रेसिडेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और मैं उनके साथ होता था। और उन्होंने कहा कि एक नौजवान को मुझसे मिलाया, कहा कि ये लाइब्रेरी में कुछ बैठना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप लाइब्रेरी पर जो गवर्नर जनरल हाउस की लाइब्रेरी है उसमें इन्हें आप बैठने दें और इनको पढ़ने दें। तो उन्होंने कहा है कि वो नौजवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें निकलवाई और हमने उनको निकलवा कर दी। तो मेरा ख्याल ये था कि ये शायद ऐसे ही नौजवान हैं, ज़रा सा शो मारने के लिए आते हैं, शायद वो इसी तरह से आकर किताबों को खंगालते हैं।
तो उन्होंने कहा एक दफ़ा मैंने जाकर देखा, कुछ दिन गुजर गए, मैंने जाकर देखा किताबों को जो उन्होंने निकलवाई थी उनको देखा भी है कि नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा उस वक्त तक जितनी किताबें मैंने निकलवाई थी वो किताबें न सिर्फ पढ़ी हुई थी, बल्कि उन किताबों पर पेंसिलों से अंडरलाइन करके आगे उनके अपने कमेंट्स लिखे हुए थे, और तकरीबन किताबों के ज़्यादातर पेजेस जो थे उनके ऊपर उन्होंने लिख लिया था। लेकिन उन्होंने ये कह भी दिया था कि जी ये पेंसिल से मैंने इसलिए किए हैं कि ये मिटाए जा सकते हैं, बाद में इनको मिटा भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं अपने यादाश्त के लिए, नोट्स के लिए ये चीज़ें मैं लिखूंगा, और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी साथ लिखूंगा। तो मुतालिया उनका इतना वसी होता था, और फिर बहुत ज़्यादा गहरी सोच विचार करते थे। उनकी बात चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी कि वो उनकी आवाम के साथ बेमिसाल कमिटमेंट थी। शायद ऐसी गहरी कमिटमेंट और ऐसी पाताल तक जाने वाली कमिटमेंट जो है पाकिस्तान में सियासतदानों के अंदर नहीं थी। उनकी आखिरी खत जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर, जो 21 जून 1978 को उन्होंने लिखा था, अपनी शहादत से कुछ दिन पहले अपनी बेटी की, उस वक्त जो है उनकी सालगिरह का इवेंट था, तो उनकी सालगिरह पर उन्होंने मेरे ख्याल में 25वीं सालगिरह थी, 52 से 78 तक 25 साल पूरे हो रहे थे, तो उनने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 25वीं सालगिरह पर वो खत लिखा था। वो खत एक शाहकार है। अच्छा, मुझे एक मेरी बात प्यारी बड़ी, बेटी। मैं कुड़ता हूँ इस बात से, पीपल्स पार्टी की जो कैडर है, जो वर्कर है, जो आम वर्कर है, मैं लीडरशिप में भी ये शिकायत करता रहता हूँ और वर्कर से भी, कि वो पढ़ते नहीं हैं। वो भुट्टो साहब को नहीं पढ़ते हैं, वो बीबी की जो किताबें उनको नहीं पढ़ते हैं। उनकी अपनी लीडरशिप में बड़ी बड़ी बहुत ही अहम किताबें, भुट्टो साहब की किताबें, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो एक लाजवाल, एक ग्रेट ट्रेजिडी उन्होंने बंगाल के ऊपर जो लिखी थी, और फौरन बाद, यानी ये वाकई 71 में बंगाल का सानिया हुआ, और भुट्टो साहब ने इस पर अपना एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट जो है वो बिशारतें करता है कि जी आप अंधे हो गए हैं, आप आगे देखें तो सही, पाकिस्तान टूटने जा रहा है। वो बता रहे हैं, एक एक चीज के बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने अपने दोस्त हमारे बड़े थे जनाब अतर अब्बास थे, अब्बास अतर थे, उनकी कतरबाद। उनकी एक सुर्खी निकाली थी उन्होंने, और पूरा उस तो सुर्खी हम। की गलत फहमी दूर करने के लिए भुट्टो साहब ने एक बड़ा तवील बयान खुद लिख कर दिया था। तो जो उन्होंने कहा था, मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि बंगाल में आपने कामयाबी हासिल की है, यहाँ पर 2 सूबों में हमने कामयाबी हासिल की है, हमें मिल बैठ कर हमें एक आईनी ढांचा बनाना होगा। अब ये लोग कहते हैं कि जनाब भुट्टो साहब ने तो इक़्तिदार की खातिर जो है पाकिस्तान तुड़वा दिया। यानी उनका ये कहना है कि उन्हें शेख मुजीब के इक़्तिदार उनके हवाले हो जाना चाहिए था। हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, इक़्तिदार आप हवाले कर देते, लेकिन भुट्टो साहब को भी एतराज़ नहीं था। लेकिन असला मसला ये था कि जो 6 नुकात थे, वो 6 नुकात ये कह रहे थे कि हर सूबे की अलग करेंसी होगी, हर सूबे का अलग फौज होगी, हर सूबे का अलग रेवेन्यू होगा, हर सूबे का और सब कुछ अलग होगा, और अपना झंडा होगा। यहाँ तक तो उसके अंदर दिया हुआ था। फिर आपको एक नहीं 5 पाकिस्तान बनाने पड़ते या 5 मुल्क बनाने पड़ते, तो इस सूरत हाल को भुट्टो साहब कबूल कर सकते थे, या कोई भी आदमी कबूल कर सकता कोई था भी नहीं कर। कि शेख मुजीबर रहमान इक़्तिदार संभालें और पाकिस्तान के 4 नहीं 5, 2 नहीं 5 टुकड़े कर दें, और हर सूबे को अलग अलग एक टुकड़े की सूरत कर दें। तो ये मुमकिन नहीं था कि भुट्टो साहब जैसा आदमी, और भुट्टो साहब इंडस पर्सन थे। वो जो है मैं ये कह रहा हूँ कि लद्दाख से लेकर जीवनी तक और तुफ्तान तक, वो उनके अंदर पूरा पाकिस्तान उसके उनके दिल के अंदर धड़कता था। वो एक एक इंच से, एक एक चप्पे से वो मोहब्बत करते थे पाकिस्तान के। इसलिए वो तो हो नहीं सकता था ना कि भुट्टो साहब की जिंदगी में पाकिस्तान को इस तरह से कि वो इक़्तिदार में जाकर बैठें और जनाब बैठें और शेख मुजीबर रहमान के साथ पावर शेयरिंग करें। वो कहते हैं कि ये मसला ही नहीं है, मैं अपोजिशन में बैठने को तैयार हूँ, आप आइन का एक ऐसा ढांचा बनाएं जो एक वफाक की सूरत में हो। आप जो है वो अलहदा मुल्कों की बात करेंगे तो पाकिस्तान इस तरह से तो नहीं चल सकेगा। ये थी वो बुनियादी बात जिसकी वजह से उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया था। उनका विजन बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, और फैसले वो आवाम से पूछ कर करते थे, जलसा आम में फैसले करते थे, जलसा आम में लोगों से जाकर अपना मामला रख देते थे। उन्होंने 73 में आकर कहा कि भाई अब आप देखें कि हमें बंगाल के हिस्से के पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। अगर हम बंगाल को तस्लीम कर लेते हैं, बांग्लादेश को तस्लीम कर लेते हैं, तो हमें उसके हिस्से की अदायगियां नहीं करनी पड़ेंगी। तो
मजमे ने कहा नहीं 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 मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। भुट्टो साहब ने कहा लानत भेजो भाई, मैं नहीं करता हूँ। जाए जहन्नुम में बांग्लादेश, जाए जहन्नुम में मुजीबर रहमान, मैं नहीं तस्लीम करता हूँ। मुझे कोई, मैं उस जलसे में मौजूद था, मैंने वो खुद उस जलसे में शिरकत की थी। ये उनकी या करम मेहरबानी थी, बहुत नवाजिश थी कि वो मुझे जानते थे, नाम से जानते थे, उन्हें पता था और हम उनसे मिलते भी थे। और ख़ास तौर पर उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हमारी उनसे बड़ी मुलाकातें रहीं। और ख़ास तौर पर जब वो वजारत उज़्मा से हटने के बाद मरी के गवर्नर हाउस से रिहाई पाने के बाद जब लाड़काना पहुंचे थे, तो हम वहां पहुंचे थे लाड़काना। हम 3 आदमी गए थे। डॉक्टर अमीर अहमद उस वक्त वो वजीर तामीरात थे, आखिरी वजीर तामीरात थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की काबीना में। और उसके अलावा यूनुस शरर साहब थे, ये प्रोफेसर थे उर्दू कॉलेज के। बाद में वो यूएस से अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर ही वो दर्स व तदरीस का काम करते थे और एक मैं था। हम तीनों वहाँ गए थे और वहाँ जाकर हमने भुट्टो साहब से मुलाकात की थी। और भुट्टो साहब ने कराची की, अच्छा उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास टाइम क्या है, मैं तो लगातार बोलता चला जा रहा हूँ। जी जी जी, प्लीज तो प्लीज आप बोलते जाए। तो हुआ क्या है कि उस महफिल में एक जो हमारी उस दिन मेरे ख्याल में ये 30 30 जुलाई या 31 जुलाई था। 30 जुलाई को पहुंचे वो लाड़काना में, और शायद 31 जुलाई को हम लोग वहाँ मिलने के लिए गए 1977 को। और उससे पहले जुलाई में 9 जुलाई को मेरी मोहतरमा बेगम साहिबा से, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा से भी मुलाकात हुई थी। फेसबुक पर मैंने उनकी वो तस्वीर भी शेयर की थी जो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। और उसके अलावा उन्हीं दिनों में बीबी से, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से भी मुलाकात की थी। और भुट्टो साहब से हमारी मुलाकात जो है वो लाड़काना में बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी। उस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से वफद आए हुए थे और भुट्टो साहब को ये मालूम हुआ था कि उनकी पार्टी के एक मीर अली अहमद टालपुर जो हैं, नहीं, मीर अली नवाज टालपुर जो हैं, उन्होंने जाकर मुलाकात की है पीर बगारा से। तो फिर उन्होंने, जो लोग बैठे हुए थे सामने, काफ़ी लोग जो थे वो ड्राइंग रूम में फर्श पर बैठे हुए थे। मुल्तान का वफद है, फैसलाबाद का वफद है, लाहौर का वफद है। सोफे पर जो है एक तरफ को बैठे हुए थे अब्दुलस्तार गबोर, डॉक्टर अमीर अहमद, मैं, यूनुस शरर, और दूसरी तरफ को जो है मुमताज़ भुट्टो और फारूक लगारी, एक और आदमी बैठा हुआ था, मीर, हाँ, मीर इजाज टालपुर, मीर इजाज टालपुर। और भुट्टो साहब के बराबर वाली कुर्सी पर जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बैठे हुए थे। तो भुट्टो साहब ने पूछा, हाँ भी फैसलाबाद का क्या हाल है? तो फैसलाबाद वाले बता रहे थे, जी हम तो अभी ये इलेक्शन का ऐलान कर चुका है, 90 दिन में के इलेक्शन होंगे, तो हम तो सारी सीटें लेंगे, कोई एक सीट भी हम लूज नहीं करेंगे। फिर वो एक एक सीट का तज्जिया पेश कर रहे थे फैसलाबाद की। अब फिर उसके बाद लाहौर का पूछा, फिर मुल्तान का पूछा, तो मुल्तान वालों ने कहा कि जी एक सीट जो है सूबाई असम्बली की, उसमें अगर अकबर के बेटे को, कोई अकबर थे पीपल्स पार्टी के, तो उनके बेटे को अगर टिकट मिलेगा तो हम मुल्तान सारे का सारा ले लेंगे, मुल्तान की कोई सीट भी बाहर नहीं जाएगी। तो जब वाह। ये दो तीन बड़े सेंटर्स की बात कर चुके, तो फिर उन्होंने मीर इजाज की तरफ देखा और उन्हें कहा कि मीर साहब सुन रहे हो? तो मीर साहब वाह। जो है दोनों हाथ बांध कर खड़े हो गए। उन्होंने, सही मैं बांध, सिंधी में कहा, सही मां तो बांध हुआ यहाँ, नहीं मैं तो आपका खादिम हूँ। तो हाँ, लेकिन वो उनको सुनाना ये चाहते थे कि तुम अगर गए हो पीर पगारा से मिले हो तो ये देख लो लोगों का मूड कैसा है, लोग कैसा मूड रखते हैं। तो फिर वाह। उसके बाद जतोई साहब ने जो है वो कहा, सही मीर साहब मोमिन आदमी है, सही मीर साहब मोमिन मानू हुआ। तो इस तरह से वो उनकी सफाई दे गए। ना मोमिन मीर साहब थे और ना मोमिन जो है वो जतोई साहब थे। दोनों के अंदर जो है वो एक मौजूद थी, गड़बड़ मौजूद थी। और हमें ये सब मालूम था कि इनके अंदर गड़बड़ मौजूद है और ये इनके अंदर एक और बंदा बैठा हुआ है। फिर बाद में साबित भी हुआ, इस पर बहसें भी हुई, गुफ्तगू भी हुई। मैंने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब से झगड़ा भी किया था कि आप जो है वो भुट्टो साहब को 4 दिन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, आप एक दिन भी वहाँ चल कर नहीं गए। नहीं जी, मैं तो कच्चे के इलाके में गया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं तो उधर शिकार करने गया। मैंने कहा, हाँ आपको तो शिकार से फुर्सत नहीं थी, आप कहाँ जाते भुट्टो साहब को आखिरी बार मिलने के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, एक बड़ी मुद्दत के बाद उनको पेश होने का मौका मिला था। तो जतोई साहब नहीं मिले थे, लेकिन
जतोई साहब क्या, सेंट्रल कमेटी के बहुत से लोग थे जिनके हाथ भुट्टो साहब के लहू से आलूदा थे। ये पीपल्स पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए थे। मैं मुझे अब हजारों सैकड़ों लाखों लोग इसको सुन रहे हैं, और मैं इस पर एक अलग से किताब लिखने का इरादा रखता हूँ कि कौन किस किस का क्या क्या हाथ था। मौलाना कौसर अली का किरदार क्या था, गुलाम मुस्तफा खर का किरदार क्या था, मुमताज अली भुट्टो का किरदार क्या था, हफीज पीरजादा का किरदार क्या था, यासीन भुट्टो का किरदार क्या था जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल बने हुए थे। तो बहुत से लोगों का किरदार हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कौन जनरल ज़ियाउल हक के साथ बैठकर यकीन दहाना करा रहा था कि जी ठीक है जी, आप भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा दें, कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग थे जो उस वक्त उन्होंने अपना किबले का रुख फेर लिया था, उन्होंने अपना रुख जो है वो दूसरी जानब को फेर लिया था, लेकिन वो खौफजदा थे, इसलिए वो अवाम से खौफजदा होने की वजह से बाकायदा ऐलान नहीं कर सकते थे और बाकायदा वो छोड़कर नहीं जा सकते थे। तो जब देखा कि जनाब अब वक्त गुजर चुका है और लोगों का वो जख्म जो है, जख्म तो अब तक नहीं भरा है लोगों का, लोगों के जख्म पर अब तक मरहम नहीं रखे गए। भुट्टो साहब का दर्द आज भी ताज़ा है। कल वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मुंतकिल होता है, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन को मुंतकिल होता है। कहाँ ऐसा होता है दुनिया में, और कौन सा सियासतदान है ऐसा कि जो नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों पर राज करता हो। आज भी अगर फ्री फेयर इम्पार्शल वो हैं तो वोट फिर भुट्टो को मिलेगा। जी सर, लगारी साहब, यही तो बात है कि जब एक भुट्टोस्ट बोलता है तो फिर दुनिया खामोशी से सुनती है। हम महजूज हो रहे थे। अब परसों बीबी शहीद की बर्थडे है, 67। तो उस बेनजीर क़यादत, बेनजीर लीडर और शहीद कायद की, एक अजीम कायद की अजीम बेटी को आपके तवस्सुत से हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं आपकी जुबानी, ताकि हम जैसे कारकुनों को भी अपनी बेनजीर भुट्टो को सलाम पेश करने का, अकीदत पेश करने का, खराज तहसीन पेश करने का इससे अच्छा मौका कौन है कि एक भुट्टोइस्ट हमारे साथ हैं और आप बेनजीर अल्फाज में बेनजीर भुट्टो को खराज तहसीन उनकी बर्थडे पे पेश करें प्लीज। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में कभी भी ख़वातीन के लिए स्पेस नहीं रहा। यानी जब कायद आज़म की हमशीरा, कायद आज़म के वालिद और माँ के बतन से पैदा होने वाली सगी बहन को न बख्शा गया हो, और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट हो, उस वक्त का जो हुक्मरान हो, जिन लोगों ने उस वक्त मादर मिल्लत को, फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा हो, बाकायदा ये गद्दार कहा हो, जिसने पाकिस्तान बनाया, शी वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, नो डाउट। जितना पाकिस्तान के क़याम में जितने दीगर लोगों का, कायद आज़म का, नवाब लियाकत अली खान का, सरदार अब्दुल निश्तर का, या जो भी लोग थे सारी के सारी स्ट्रगल में उतना ही किरदार था। बल्कि एक कदम आगे यूँ समझना चाहिए कि बतौर खातून उन्होंने एक मिसाल कायम की थी, और ऐसी बेमिसाल खातून के बारे में भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने गद्दारी के फतवे दिए और उनके ऊपर भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए। ऐसी सोसाइटी के अंदर एक ऐसे एक ऐसे ऐसी शख्सियत की बेटी को कौन बर्दाश्त कर सकता था जिसको उन्होंने कत्ल किया हो, जिसका उन्होंने खून किया हो। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो एक मिनट के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी बेनज़ीर भुट्टो को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। मगर बेनज़ीर भुट्टो के अंदर एक विजडम था, एक रोशनी थी, एक पाकिस्तान के जो विरासत मिली थी पाकिस्तान के लोगों के साथ, पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़, जमहूरी तर्ज़ अमल के हक़ में, जमहूरियत के हक़ में, जमहूरी रवैयों के हक़ में उनका एक इतना ठोस स्टैंड था कि उनकी शख्सियत जब तक पाकिस्तान में वो रही हैं, ज़िंदा रही हैं, चाहे दुनिया के किसी कोने में थी, पाकिस्तान की शनाख्त, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की इज़्ज़त बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से थी। अब हम बेशक, दुनिया में बेआबरू हैं, अब हम दुनिया में बेशक, हमारी कोई तौक़ीर नहीं है, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हमें बेशक। कोई नहीं पूछता है, हमें कोई नहीं घास डालता है, इसलिए कि हमने अपने लीडर को, जो वाक़ई सही मायनों में
अवाम के दिलों में धड़कती थी, उनको हमने इस तरह कर लिया। हमने उनको दिन दिहाड़े भरे मजमे के अंदर हमने उनकी जान ले ली। हमारी ये सोसाइटी है, हमारे अंदर ये वो है। और फिर कुछ कह दिया कि फलां 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 जो है वो कातिल है, बाद में उनको भी छुड़ा लिया गया, बाद में जी उनको भी बरी कर दिया गया। तो ये एक सिस्टम है मेरे ख्याल में कि ये हमारी नस्ल ने भुगता है, और हमारी नस्ल ने बहुत ज़्यादा इस सारी सूरत हाल को भुगता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जो तजर्बात किए हैं, जो सीखा है जो कुछ उन्होंने, और जिस तरह से उन्होंने सियासत के अंदर पैदा होने वाली खराबियों का तजिया किया है, शायद हुक्मरान अशराफियों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों को जितना वो दबाते चले जाएंगे, लोग उतना ही उभरेंगे। उनको ये गलत फहमी है कि हमने करप्शन की जो है वो एक एक एक, एक फैला दी है वबा, और उसके अंदर जो है हमने लोगों को खुली छूट दी कि जनाब तुम लूट मार करते रहो, बड़े मज़े से ऐश करो, अयाशियाँ करो, सब कुछ करो, और फिर हम उनकी गर्दन जाकर पकड़ेंगे और कहेंगे कि तुम चोर हो, लुटेरे हो, फलां हो। हम सियासत को रुसवा कर देंगे, सियासत को बदनाम कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासत अपना रिवाइवल करेगी, पाकिस्तान में सियासी अमल अपना रिवाइवल करेगा, पाकिस्तान में लोग सियासत की तरफ लौटेंगे। पाकिस्तान के लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनके साथ क्या मजाक किया गया है, क्या उनके साथ ढोंग रचाया गया है। पाकिस्तान के तमाम इलाकों के तमाम खित्तों के तमाम लोगों को सियासी अमल से शायद रोका नहीं जा सकेगा। ये वक्त है, इस वक्त हम सब एक पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, हम सब एक कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। एक नया वर्ल्ड आर्डर जो है वो दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि सुपर पावर्स के साथ क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में केसेस भी बढ़े हैं, अमेरिका के अंदर जो है, लेकिन वायलेशन भी बढ़ी है। तो ये सारा कुछ भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो अपनी फ़िक्र के साथ, अपने ख़यालात के साथ, अपने तसव्वुरात के साथ, अपने पैगाम के साथ, अपने विज़डम के साथ, अपने विज़न के साथ पाकिस्तान के लोगों के साथ रहेंगी, और पाकिस्तान के लोगों के दिलों में रहेंगी, और उनको हमेशा एक लीडर के तौर पर समझा जाएगा। हमेशा उनको एक बड़ा लीडर समझा जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए एक आबरू और इज़्ज़त का बायस थी। तो उनको फरामोश नहीं किया जा सकेगा। जी। ऑफ कोर्स गाजी साहब, अब मैं सवाल करने से पहले जैसे आपने, मैं आपकी इजाज़त से उस बात में सिर्फ ऐड करके आगे चलूंगा, क्योंकि अब डिफरेंट सवाल करने हैं। आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में। बीबी शहीद को हमने खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश किया उनकी बर्थडे पे। जैसे आपने वो अच्छा किया, वो चैप्टर भी खोल दिया, उधर तुम इधर हम। जब भट्टो साहब ने फिर आगे वही वही अब्बास अत्तर साहब ने लिखी स्टोरी नेक्स्ट डे, वो किसी ने नहीं देखी कि ना तुम ना मैं, हम दोनों और एक पाकिस्तान। जो जो क्लेरिफिकेशन आप बता रहे हैं, बेसिकली ये 28 फरवरी 1948 को जब लियाकत अली खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उर्दू जुबान को सरकारी जुबान का, फिर कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मशरकी पाकिस्तान में जाके 2 दफा वहां पे जिक्र किया, तो वो इशू चला। और फिर 1952 में मुजीबुर रहमान ने उर्दू जुबान को इशू बना के बंगाली जुबान के लिए, खैर वो तो लंबी कहानी है। अब आप हम आते हैं, आपने सहाफत को भी और जमहूरियत को भी जिस तरीके से पहले ही मेंशन कर दिया। अब मेरा सवाल है, आपने ये भी कहा कि ये डिक्टेटरशिप और सारा कुछ, ये वायरस भी आया, कैंसर आया, तो ये जो आपकी सहाफत में पहले जिस एक जमाने में कहते हैं ना कि क्लासिकल और गजलों के गायक और कवाली के गायक वो बड़े नालां थे, पॉप सिंगिंग से पॉप सिंगर आए और वो बड़े कहते थे जी ये नहीं ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत फतेह अली खान साहब ने कवाली को, गजल को जिस लेवल पे ले गए, वो डाई डाउन करा दिया उन्होंने पॉप सिंगिंग को। ये अब आपकी सहाफत में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये सोशल मीडिया का जो पॉप सिंगिंग वायरस आया है, इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हम किसी भी सैलाब को रोक नहीं सकते हैं। आंधी चल रही हो तो आप उसके आगे बंद नहीं बांध सकते हैं। बस सैलाब आ रहा हो तो आप रुकावटों के लिए मेजर्स कर सकते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया एक रियलिटी है,
اور دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن آپ اس کو اپنے لوگوں کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے، اپنے ماسس کے حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے پازیٹیو برعکس لائن. بھی ہو سکتا ہے، اور ٹھیک ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ چینل پر کام کریں، یہ بھی سوشل میڈیا ہے، اور آپ ادھر گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا ہے، یہ بھی ایک بہتر. آڈینس کو کیٹر کر رہا ہے، یہ بھی کچھ لوگوں کو اپنی طرف انگیج کر رہا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پاپ سنگنگ ہے اور اس نے کلاسیکل موسیقی کا، کلاسیکل جو صحافت ہے اس کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ چیزیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کیسے اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں، جو سچ ہے وہ تو سچ رہے گا نا. میرے جھوٹ ٹھیک. بولنے سے سچ جو ہے وہ اپنی حیثیت تو نہیں کھو دے گا. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ سچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سچ کا وجود تو ختم نہیں ہو سکتا. اگر کسی بھی جی. میڈیا پر، کیا یہ جو روایتی میڈیا اس میں جھوٹ نہیں بولا گیا؟ کیا پرنٹ میڈیا میں جھوٹ نہیں بولا گیا؟ جھوٹ کے تمار باندھے گئے، جھوٹ کے جی ہاں. طوفان لکھے، صحیح. اتنے بڑے جھوٹ بولے گئے پاکستان کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پرنٹ میڈیا نے جھوٹ، اور میں گناہگار ہوں کہ میں بھی ایک لمبا عرصہ میں نے بھی پرنٹ میڈیا میں گزارا، لیکن پرنٹ میڈیا کے اندر تو کرمنل قسم کے اقدامات ہوئے، ایسی کارروائیاں ہوئی ہیں کہ ایک ایک آدمی پر کئی مقدمے بننے چاہیے. یہ ہوتا رہا ہے. یہ پاکستان اچھا. کی بیسک ایسنس جو ہے اس کے اوپر جی. وار ہوا. پہلے دن ہوا جب قائد اعظم نے 11 اگست کو تقریر کی، تو اس تقریر کو سینسر کر دیا گیا، اور قائد اعظم ابھی پاکستان بننے میں 4 دن باقی ہیں، یعنی 3 دن باقی ہیں. 11 جی ہاں. تاریخ ہے، 12، 13، جی ہاں. 14 کو پاکستان نے رات کو 12 بجے بننا ہے. اس جی ہاں. وقت جو 3 دن پہلے تقریر قائد اعظم نے کی اسمبلی کے اندر، اس تقریر کو کراچی میں یہاں پر کی تھی. میں اس اسمبلی میں اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو کر میں نے محسوس کیا ہے کہ قائد اعظم نے کیا کہا ہوگا. قائد اعظم نے جس وزڈم سے، جس فار سائٹڈنس سے وہ ایک تقریر کی تھی کہ پاکستان کیسا ہوگا، وہ پاکستان کو جی. کیسا دیکھ رہے تھے. وہ تو پاکستان کو یہ نہیں دیکھ رہے تھے جو پچھلے 72 سال سے پاکستان کو بنایا جا رہا ہے. پاکستان کا بیسک ایسنس کیا ہے؟ پاکستان کا بیسک ایسنس تو کشمیر ہے. پاکستان کا بیسک ایسنس تو گلگت بلتستان ہے. بیسک ایسنس تو پنجاب اور سرائکی بیلٹ اور سندھ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان بیسک ایسنس ہے. یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کی زبانیں، یہاں کا لوگ، یہاں کی لوک روایات، یہاں کا کلچر، یہاں کی سستی، یہاں کا پنو، یہاں کی ہیر، یہاں کا رانجھا، یہاں کا مرزا صاحبان، یہاں کے سونی مہوال. یہ ہمارا کلچر، یہ ہماری تہذیب. یہاں کے بلے شاہ، یہاں کے بابا فرید گنج شکر، یہاں کے شاہ حسین، یہاں کے میاں محمد کھڑی شریف کے، یہاں پر جو ہے وہ سلطان باہو، یہاں پر گولڈا شریف کے محل. یہ ہمارا ایسنس ہے، یہ ہمارا بیسک ہے. یہ ہماری، ہمیں تو حملہ آوروں کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہمیں تو بدماشوں کی تاریخ پڑھا جاتی ہے جو یہاں پر آ کر قتل عام کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں لوگوں کو، آ کر مسلمانوں کا آ کر 1-1 لاکھ مسلمان ایک شہر کے اندر جو قتل کرتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے تالیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شاباش، یہ ہمارا ہیرو آ گیا ہے. یہ اس طرح کی تو ہمیں تاریخ پڑھاتے ہیں، اور اس طرح کا تو ہمیں، یہ قائد اعظم کا نیریٹو تھوڑی تھا. یہ پاکستان کا نیریٹو جو پیش کیا جاتا ہے، اور پچھلے غلام محمد سے لے کر اب تک جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، یہ قائد اعظم کا نیریٹو تو نہیں تھا. پاکستان تو ایک فار سائٹڈنس پاکستان کو دیکھ رہے تھے. وہ تو آگے بڑھتا ہوا پاکستان دیکھ رہے تھے، وہ تو ماڈرن پاکستان دیکھ رہے تھے، وہ تو ایک جدید پاکستان دیکھ رہے تھے، وہ تو ایک روادار پاکستان دیکھ رہے تھے، وہ تو ایک روشن خیال پاکستان دیکھ رہے تھے. یہ پاکستان جس طرح سے اس پاکستان کی مقتدرہ نے اسٹیبلشمنٹ نے بنانے کی کوشش کی ہے، یہ پاکستان تو ان کا بھٹو صاحب نے آ کر پاکستان کا ریوائول کیا تھا. اور انہوں نے یہاں پر قومی اسمبلی میں 1972 میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 5000 سال کی تہذیب کے وارث ہیں، اور اس سرزمین پر ہماری امن دوستی، ہماری انسان دوستی کی روایات موجود ہیں، اور ہم جو ہیں ہم انسانوں کو انسان سمجھ کر کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی پر جا کر حملہ نہیں کیا، کسی سرزمین پر حملہ نہیں کیا. ہم اب ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں. ہماری زبان 5000 سال پہلے بھی لکھی جاتی تھی اور پڑھی جاتی تھی. تو انہوں نے تو اپنی تہذیب کی بات کی تھی. ہم تو بہت ہی شودے قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے نا، جو ایسے لوگوں کے کہ جن کا کوئی ویژن نہیں تھا، جن کے اندر کوئی، وہ دیوار کے اس طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، دیوار کے سامنے بھی، دیوار پر لکھی ہوئی چیز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. ہمارے یہاں تو ایسے حکمران رہے. لغاری صاحب کچھ سوالات تو میرے ہوں گے، اور کچھ ساتھ ساتھ کامنٹس آ رہے ہیں، اس پہ سوالات بھی آ رہے ہیں، وہ بھی میں ایڈ کروں گا. کچھ سوالات آ رہے ہیں لیکن وہ اگلے حصے کے لیے ہیں.
اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ صحافت کو اس دور میں، ظاہر ہے آپ نے وہ ڈارک ایجز بھی دیکھے ضیاء الحق کے، جہاں پہ آپ کا پرنٹ میڈیا بھی بڑا ایڈیٹوریل، اب تو ایڈیٹوریل سسٹم بھی آپ کا ختم ہو گیا نا، سوشل میڈیا نے کافی ٹیک اوور کر لیے. چلے ہم پازیٹیو اس سے لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پرانے پاکستان کے اتنے بڑے صحافیوں اور نئے پاکستان کی یہ سوشل میڈیا کو آپ نے اس میں سے اچھی چیز کے لیے ایکسیپٹ کیا، ورنہ لوگ ایسے کرتے نہیں ہیں. بہت یہ آپ کا بڑا پن ہے. اب یہ بتائیں آپ کی صحافت جس طرح کی بھی ہے، الیکٹرونک ہے، پرنٹ ہے، سوشل ہے، صحافت کی بات میں کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت کوئی زندہ ہے؟ اور صحافت میں بھی ہر جگہ پہ پہلے تو ہم باوردی دیکھتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کو، میرے عزیز ہم وردوں، اب بغیر وردی کے ہر جگہ ہمیں وہی سب جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، صحافت میں، پرنٹ، الیکٹرونک میڈیا، آپ کی صحافت کا گلا کچھ گھونٹ نہیں دیا گیا؟ دیکھیں اس کی کوششیں تو پہلے بھی ہوئی نا، میں نے جیسے عرض کیا کہ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی کہ قائد اعظم کی تقریر سینسر ہوگی، لیکن یہ کہ سچ کو، حقیقت کو، حق کو دبایا جا سکے گا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. جھوٹ پریویل نہیں کر سکتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہو سکتے. آپ صحیح. نہیں لا سکتے ہیں جناب. ہم جو ہیں وہ شیکسپیئر یا ورلڈ وارز کو یہاں کا کوئی بڑا شاعر بنائے تو نہیں ہو سکتا. بلے شاہ بڑے شاعر ہیں نا بھائی، شاہ عبد اللطیف بھی بڑے شاعر ہیں نا. ہماری تہذیب تو بلے شاہ کی تہذیب ہے نا. بے ہماری شک. تہذیب تو شاہ عبد اللطیف بٹائی کی تہذیب ہے. ہماری تہذیب تو جام درک کی اور مست توکلی کی تہذیب شاعری ہے نا. ہمارا ادب تو وہ ادب ہے. ہمارا رحمان خٹک کا اور خوشحال خان خٹک کا، رحمان بابا کا اور خوشحال خان خٹک کا ادب ہمارا ادب ہے نا. ہمارا ادب تو کھڑی شریف کے میاں محمد ہیں، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا. ہماری تو وہ تہذیب ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا اور کوئی ایک سیگمنٹ آئے گا اور ساری کی ساری ماضی کی جو اچھائیاں، ماضی کا تو اتنی بڑی چیزیں پیدا ہوئیں، اتنا اس پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک پاکستان کا جو ایسنس ہے، جو روح ہے، اس کو کچلنے کی کوششوں نے کچل تو نہیں سکے. پاکستان تو اپنے پورے کے پورے حسن و جمال کے ساتھ ویسے کا ویسا موجود ہے. پاکستان کے لوگوں کے دل تو ویسے ہی دھڑکتے ہیں. پاکستان کے لوگ تو ویسے ہی محبت کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کے اندر تو وہی سارا کچھ موجود ہے جس کو روکنے کی کوشش کی گئی. وہ ہر لحاظ سے آگے بڑھتی ہوئی سوسائٹی کا خواب دیکھتے ہیں اور وہ اس خواب کی تعبیر لیں گے. ان کی آج کے دور کو ہم کیا کنسیڈر کریں؟ لوگوں نے 5000 سال تک بڑے بڑے سورما حملہ آوروں کے حملوں کے بعد بھی ایک دفعہ پھر زمین میں سے جیسے فصل اگاتی ہے، لوگ اس طرح سے اگ کر آتے رہے. آپ دیکھیں تو جا کر شہزاد پور کے سانگڑ کے قریب ایک منصورہ کے کھنڈرات کو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. ایک بہت بڑا بھرا ہوا شہر تھا. 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا. ملتان میں قتل کیا گیا. تو کیا لوگوں کو قتل کر دیا گیا تو ختم ہو گئے؟ لوگ نہیں ختم ہوتے ہیں بھائی. آپ کیسے لوگوں کو مسلط کر دیں، کیسے بھی آپ ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیں، کیسے بھی ان کے اوپر برے حکمرانوں کو لا کر تھوپ دیں، لوگ چلتے رہتے ہیں، لوگ بڑھتے ٹھیک رہتے ہیں. آج ٹھیک، ایک بڑی بولنے والا ہوتا ہے پھر دوسرا اچھی بولنے والا بات ہے ہوتا ہے. جی. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں دیا جلائے ہوئے ہوتا ہے. رکھنا چاہیے. ہم اس کو کیسے بھول دیں، اس کو کیسے چھوڑ دیں کہ کوئی شخص وہاں پر دیا جلائے بیٹھا ہے؟ ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جب جاتے ہیں اور بلے شاہ کے مزار پر کتنے دھماکے کرنے کی کوشش کی گئی، ہماری تہذیب کے اوپر، ہماری ثقافت کے اوپر، ہماری شاعری کے اوپر باقاعدہ بم پھینکے گئے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا لوگوں نے جو ہے وہ بلے شاہ کو پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے خواجہ غلام فرید کو پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے جو ہے وہ میاں محمد کو، سیف الملوک کو پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا لوگوں نے لطف علی کو پڑھنا چھوڑ دیا؟ لوگ بھائی اب بھی وہی تہذیب ہے، وہیں رہتے ہیں، اسی جگہ پر ہیں، اسی تہذیب کے ساتھ ہے اور اپنے اسے پورے وژڈم کے ساتھ لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں. اگر یہ کہیں کوئی ایک چھوٹا سی سطح پر لوگ اگر اپنا رخ بدل لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں یا ہم نئے لوگ ہو گئے، تو نئے لوگ نئے نہیں ہوتے ہیں. وہ بس ایسے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہوتے ہیں. جی ایک آتا ہے فیض، صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جس کنوکشن کے ساتھ لغاری صاحب آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی ڈٹرمنیشن صحافت اور جمہوریت کے لیے اس وقت لوگ سن رہے ہیں،
यही मैसेज हमने ब्रिज करना है ओवरसीज में और पाकिस्तान में, और इससे एक हमें रोशनी की उम्मीद की किरण नजर आती है, और इसी से हम आगे अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, सहाफत में भी और जमहूरियत में भी। अब सवाल मेरा सर ये है कि जैसे मैंने वो एक थोड़ा सा पैरेलल क्रिएट किया सहाफत और उसमें ये सोशल मीडिया में, इसी तरह देखें आज की सियासत पे हम आते हैं कि आज की सियासत में वो जैसे आप कहते हैं भट्टो साहब को नहीं पढ़ते, कायदे आजम को नहीं पढ़ते, इसी तरह बड़े बड़े जो है ना वो शोरा को, हमारे सूफी उनको नहीं पढ़ते। इसी तरह ये है कि आज टिकटॉक की सियासत आ गई है। मैं एक आपको मिसाल दूंगा, और उस मिसाल के अंदर मैं समझता हूं कि आप उसे रोशनी डालें, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा फलसफा है। वो खाली अजराए तफन्नुन नहीं है कि साबिक जनरल शुएब साहब कहते हैं कि वो टीवी पे बैठ के कि मैंने पीटीआई को वोट दिया और मैं अपनी जहालत का एतराफ करता हूं। सर ये बहुत बड़ा इसके पीछे फलसफा है कि एक स्टेब्लिशमेंट का बंदा वो अपनी जहालत, यानी कि वो किसी जहालत में वो इन्वॉल्व हो चुका था, को ट्रैप हो चुका था, उधर से और लोग भी होंगे, एक ने तो आके हिम्मत की। तो ये जहालत, ये हमारे अंदर जो ये टिकटॉक की सियासत है और ये स्टेब्लिशमेंट का जो व्हाइट एलिफेंट है, ये कैसे लगाम में आएगा कि हमारी नस्ल को हम सही सहाफत और सियासत की जमहूरियत तो दिखा सकें। एक तो वो मेरी मेहरबान है, मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं। मैं इत्तेफाक है कि कल मैं उस शो में नहीं बैठ सका। दिन में मैंने भी उस शो में बैठना था और उनकी ये गुफ्तगू मैंने भी सुननी थी। अक्सर हम कई शोज़ में हम साथ होते हैं और वो मेरी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करते हैं, मैं उनकी बहुत सी बातों से इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन बहरहाल वो एक अपनी सोच का अंदाज़ रखते हैं। वो हमारे इख्तलाफ को बर्दाश्त करते हैं और हमारा सीना बहुत खुला है। हमें हमें तो हर बात वो अच्छी लगती है जो हमारे खिलाफ की जाए। हम तो बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। हम लोगों को जानना चाहते हैं कि लोग किस तरह से सोच रहे हैं, किस अंदाज में सोच रहे हैं। अगर कोई हमारे नुक्ते नज़र के खिलाफ बात करता है तो हमें अपनी कोताहियाँ जानने का मौका मिलता है। हमें इस बात का मौका मिलता है कि हम अपने आप को समझ सकें। ये उनका बड़ापन है कि बिलाखिर उन्होंने कह दिया कि जी ये मेरी जहालत थी। मैंने भी सुना है इस बात को और मैं महसूस भी हुआ, लेकिन मैंने उन पर कोई किसी किस्म की तंज नहीं की और तंज बनती भी नहीं है। किसी भी शख्स को किसी भी वक्त अपने आप को दुरुस्त करने का हक है कि वो अगर ये समझे कि मैं कल गलत था और आज हकीकत ये है, और उस वक्त भी हकीकत ही वो नहीं थी जो मैं समझ रहा था। तो ये बड़ापन है। और अगरचे उनके बहुत से नुकात से मुझे इख्तलाफ हो सकता है और मुझे या इख्तलाफ है, लेकिन उनके इस बड़ेपन से मैं बिल्कुल नहीं वो करूँगा कि जी नहीं ठीक है ऐसे ही उन्होंने कह दिया। नहीं, उन्होंने अपने अंदर सोचा और उन्होंने ये ख्याल किया कि उनका फैसला गलत था और उन्होंने ये कहा कि मैंने पीटीआई को वोट दिया था और मैं अपनी जहालत का एतराफ़ करता हूँ। तो फिर ये कि ऐसे वैसे नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल होना पाकिस्तान की फ़ौज में तो एक बहुत बड़ी चीज़ समझी जाती है। तो बहरहाल वो लेफ्टिनेंट जनरल के मनसब तक गए और 3 स्टार जनरल बने और उसके बाद वो इतने अरसे से तजिया करते हैं और मेरे तो बहुत ज़ाती मेहरबान भी हैं। मैं उनसे दोस्ती का दावा भी करता हूँ, लेकिन और इख्तलाफ का दावा भी करता हूँ। मुझे बिल्कुल उनके साथ एक नहीं, उनकी कई बातों से इख्तलाफ हो सकता है और इसी तरह से वो भी मुझसे बहुत सी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये उनका, मैं समझता हूँ कि ये बड़ापन है। उन्होंने इस बात को समझ लिया और उसका एतराफ़ किया और इदराक किया कि अगर वो कल गलती पर थे, तो आज उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया। बहुत लोग सारी ज़िंदगी गुज़र जाने के बावजूद भी ये नहीं कहते हैं कि ये मेरी गलती थी। आप कहलवा कर देखें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से कि ज़ियाउल हक की टीम का हिस्सा बनना मेरी गलती थी। इतनी सी बात ही कह दें। आमरों को कहते रहेंगे, ज़ियाउल हक का नाम लेकर वो कभी नाम नहीं नहीं लेंगे। कहेंगे हाँ, कि जी मैं वो जो है मेरे मैं बानी उनके थे। ऊपर तनकीद करें या उनके, हम खुलकर कहते हैं और हमने उस दौर में भी कहा, उनके होते हुए कहा, उनकी मौजूदगी में कहा कि भई ये तो पाकिस्तान वो नहीं है जो ये बनाना चाहते हैं। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कुछ और था और कायद-ए-आज़म के तसव्वुरात कुछ और थे और जनरल ज़ियाउल हक ने तो कौम को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट दिया ना।
उसने तो फिरका वारियत फैला दी, उसने तो लसानियत फैला दी, उसने तो लसानियत जो है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़ुबानों का एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान में बोली जाने वाली हर ज़ुबान मेरे लिए बहुत मोहतरम है और एक-एक ज़ुबान को बचाया जाना चाहिए। मैं उस बात का भी ख़िलाफ़ था कि जब ये जाकर कहा गया था कि बंगाली की तारीख़ तो इतनी ज़बरदस्त तारीख़ कि अब तक और पूरे बरे-सग़ीर में वाहिद नोबल इनाम याफ़्ता जो ज़ुबान है वो तो बंगाली है। हम कैसे कह सकते थे कि बंगाली जो है नहीं होनी चाहिए या सिर्फ उर्दू होनी चाहिए? उर्दू भी होनी चाहिए और बाकी ज़ुबानों को भी होना चाहिए। कश्मीरी को भी होना चाहिए, शीना को भी होना चाहिए, बल्ती को भी होना चाहिए, गिलगिती को भी होना चाहिए, बलूचिस्तानी को भी होना चाहिए और गुजरी को भी होना चाहिए, पश्तो को भी होना चाहिए, सराइकी को भी होना चाहिए, बलोची को भी होना चाहिए, बिराबी को भी होना चाहिए। सारी ज़ुबानों को फलने-फूलने का मौका मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ज़ुबानें जो हैं वो ज़ुबानों से तासुब फैलता है। तासुब उस वक़्त फैलता है जब आप ज़ुबानों को इग्नोर करते हैं, जब आप लोगों की वो करते हैं, ज़ुबानबंदी करते हैं, तो फिर आप बुरा करते हैं। लोगों को गारी साहब, बोलने से तो आप जी, आप गारी साहब देखें, आपने बहुत खूबसूरती से उस चीज़ को उनका बड़ापन बताया है जनरल शोएब अमजद का। हम भी यही कह रहे हैं और देखें आप माशाल्लाह ज़ुबानों की भी तारीफ कर रहे हैं, 8 ज़ुबानें तो आपको भी आती हैं माशाल्लाह। तो बात ये है कि जनरल शोएब अमजद साहब ने जिस तरह उसको कन्फेस किया, आम जिंदगी में लोग इस तरह कह सकते थे जी ठीक है जी मैंने वोट दिया, वो काम नहीं कर सकते, अब मैं देखूंगा। लेकिन उन्होंने जिस अंदर से जिस एक वो एक ट्रैप होने की इस साजिश को एक किस्म का कि ये मेरी जहालत थी, यानी कि कोई एक जाल बुना गया था पाकिस्तान में, कुछ साजिश आई थी कि वो भी उस जहालत में बह गए थे। मैं उस लेवल तक आपको लाना चाह रहा हूं कि बंदा तो एक आया बोलने वाला, लेकिन ये कई लोगों के जज्बात होंगे, जैसे आपने कहा कि हर कोई कहता नहीं है, लेकिन इन जज्बात को किस तरह एड्रेस किया जाए, इस जहालत को हैंडल किस तरह किया जाए? मेरे ख्याल में लोगों को कुछ यानी हमारे मोहतरम जनाब जनरल अमजद शेख ने तो कह दिया, बाकी लोग जो हैं वो कह नहीं रहे हैं, बाकी बहुत से लोगों ने समझा हुआ है, जी। अच्छा वो सर। समझते हैं। जी। अच्छा ये बताएं कि ये शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एटम बम बनाया, तो वो अभी तक जो है ना बुग़्ज़ और अनाद और हसद और तासुब में वो बेशक ना माने, लेकिन ऐसा ऐसा भी आता है दौर के वो उनको बानी नहीं मानते। लेकिन अब आयन शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया, आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको सारा ठीक करके दे दिया, 18वीं तरमीम करके दे दी। तो ये क्या हमारा कुछ जुर्म है, ये को हमारी गलती है कि आज कराची में बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इसकी वजह से वो वजीर आला डिक्टेटर बन जाता है, मैं तो निचली सतह पे वो इक्तदार की डेवोल्यूशन चाहता हूँ। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत 2 साल के लिए बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का ऐलान करती है, और ये वही हुकूमत है, वही पार्टी है कि जो कहती थी कि हम बल्दियाती इंतखाबात, ये MNAs MPAs को कोई डेवलपमेंट फंड नहीं देंगे और हम उनको देंगे। और नीचे जब इनका सफाया हुआ तो उन्होंने बल्दियाती इदारे ही खत्म कर दिए, और 18वीं तरमीम के पीछे क्यों पड़े हुए ये? एक आदमी की एक वक्त में एक पोजीशन होती है, दूसरे वक्त में दूसरी पोजीशन होती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक तारीखी पोजीशन अख्तियार करते हैं और उस पर कायम रहते हैं, तो बाज़ लोगों की पोजीशन जो है वो वक्त के हिसाब से बदलती रहती है, मौसम के हिसाब से बदलती रहती है और जी। वो इसको अच्छा भी समझते हैं। वो बड़ी-बड़ी बात को वो कह देते हैं कि वो तो सियासतदान ने जो यू टर्न ना ले। अब यू टर्न तो उनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है। अगर आप भुट्टो साहब से कहते जनाब यू टर्न भी कोई फ़िलॉसफ़ी है, तो ज़ाहिर है वो बहुत सख्त रिएक्ट करते। वो इस बात को कभी तस्लीम ना करते कि यू टर्न भी कोई सियासी फ़िलॉसफ़ी हो सकती है। तो आप ऐसी चीज़ों की आप किसी से तवक्को ही क्यों रखते हैं कि जब आप सुबह वाली बात जो है उसकी शाम को तरदीद कर रहे हो, तो उनसे आपको ये तवक्को क्यों होती है कि जनाब वो सुबह वाली बात पर क्यों कायम नहीं है? तो वो तो उन्होंने लेना ही होता है ना। तो उन्होंने जो कुछ कहा था, उन्होंने क्या कहा था आमरीत के बारे में, उन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में क्या कहा था, उन्होंने किस तरह से
लोगों जजों के बारे में बात की थी। एक किस लंबी तरह लाइन है, से लंबी लाइन है। बहुत, जी हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा था कि जी मैं अगर कर्जा लेने से तो मैं खुदकुशी करना बेहतर समझूंगा। उनने कहा था कि जी मैं अपना खैरात के लिए झोली नहीं फैलाऊंगा। 1000 बातें हैं जो उन्होंने की, तो जी हम हाँ, क्या कहेंगे कि बिल्कुल। जनाब वो जो है हम उनसे जाएं और उनको कहें कि जनाब उनकी बातें याद दिलाएं, तो बंदे को याद होता है। मैंने भी जो कल कहा मुझे याद है, मैंने जो आज कहा मुझे याद है, मैंने 3 दिन पहले जो कहा मुझे याद है, और मैंने जो 40 साल पहले कहा मुझे याद है। मैं कहता हूँ कि आपको आखिरी वक्त में ये होता है कि आवाम के साथ खड़े होना होता है, मास्टर्स के साथ खड़े होना है, मास्टर्स के एसेंस के साथ खड़ा होता है, लोगों की रूह के साथ खड़ा होना होता है कि लोगों के रूह में जो धड़कन है वो कैसे है, और उसका मिजाज क्या है, और किस तरह की है, और किस रंग की है, क्या है उसके अंदर, लोगों की उमंगें क्या हैं, ख्वाहिशें क्या हैं, आरजुएं क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। ये तो नब्ज शनास बता सकता है ना, जिस जो जो अवाम की नब्ज पर जिसका हाथ होता है, तो उसको पता होता है कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों का तर्ज अमल क्या है। लोगों की ख्वाहिशों की भी एक तारीख होती है, लोगों की आरजुओं की भी एक तारीख होती है, लोगों की उमंगों की भी एक तारीख होती है। ऐसे नहीं होता है कि लोग खामखा अचानक किसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दें। तो लोगों के बारे में हमारी, मुझ जैसे लोगों की कोताह नजरी कुछ भी हो, लेकिन मास्टर्स हम सब से, हमारी कितनी सी बड़ी सोच हो, नजीर लगारी तुरम खान बन जाए, लेकिन मास्टर्स के कलेक्टिव विजडम के आगे उसकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आवाम की कलेक्टिव विजडम जो है वही लेकिन सबसे बड़ी होती है। ये नहीं कि लेकिन चोरी कर ली जाए, ये नहीं जी कि हाँ, जो है बैलेट बॉक्स उठा कर ले दिया जाए, ये नहीं है कि लोगों की राय के ऊपर डाका डाला जाए, या ये नहीं कि लोगों की राय को इंजीनियर कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया जाए। लेकिन लोगों को जब भी राय देने का मौका मिला, अब नहीं मिला है, ये उनकी बदकिस्मती है कि 70 में मिल गया था, फिर उसके बाद 77 में इलेक्शन हुए थे, उसमें भी जो धांधली का शोर मचाया गया था, तो उसके बाद से लेकर आज तक तो इलेक्शन हुए नहीं। फेयर इलेक्शन, इम्पार्शियल इलेक्शन, ये तो कोई आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, नहीं होते हैं, उठा जी हाँ। लिए जाते हैं, जी इलेक्शन लगारी साहब। चोरी हो जाते हैं। जी वली खान ने लगारी कहा था साहब। कि जिसके जेब में जी 200 जी। करोड़ रुपए हों वो लेकर आ जाए और पाकिस्तान की असम्बली को खरीद ले, जो मर्जी है कर ले। तो हम्म। पाकिस्तान के बारे में तो ये कहा गया था, जहां इंजीनियर्ड असम्बली बन जाए तो वहां तो इस तरह होता है, लोगों के लगारी दिलों साहब, में जो आप होता है। ये ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के यू टर्न है, एक यू टर्न मेरे ख्याल में इन्होंने ले लिया। इन्होंने कहा था कि मैं अगर आईएमएफ के पास गया तो खुदकुशी करूंगा। इन्होंने ये आईएमएफ के पास नहीं गए बल्कि उसे अपने घर ले आए, इन्होंने उल्टा किया। एनीवे, मेरे जो सवाल की तरफ आता हूँ लगारी साहब, कि देखिए कोई भी तरमीम हो, 18वीं हो 19वीं हो, अब तो 25 तरमीम हो गई हैं, लेकिन 18वीं तरमीम बेस करती है सारे सूबों के सारे मामलात, लंबी लिस्ट है। तो उसको खत्म या उसके अंदर चेंज लाने के लिए आप 2/3 मेजोरिटी आपकी होगी, वो तो आपके पास है नहीं। आप किस तरह करना चाहते हैं? अब मैं सर डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन पे ले आऊंगा, आज के हालात में, कि इन्होंने मीडिया को बिल्कुल उसको एक किस्म का, मैं दूसरे लफ्जों में कहूंगा, बैन किया हुआ है। अपोजिशन को बिल्कुल जो है ना केसेस बना के फारिग किया हुआ है। अब ये अदलिया के भी पीछे पड़ गए हैं। आज जस्टिस काजी फाइजा का फैसला आया, मैं तो उसे डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहा था। तो उन्होंने तो उठा के फेंक दिया, प्रेसिडेंट का रेफरेंस जो था उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया। तो ये क्या मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या हो सकती है इस पे, कि इन्हें क्या करना चाहिए हुकूमत को? अभी कोई है, कोई इतना एहसास करने वाला कि हमने अदलिया को एक ही दफा अटैक किया था, अब किसको इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वो अखलाकी इनमें तो है नहीं कदरें। लेकिन अभी क्या इस वजह से कोई नया ट्विस्ट तो नहीं लेगी पाकिस्तान की सियासत, या कोई स्टेब्लिशमेंट या अदलिया का कोई झगड़ा तो नहीं होगा? क्योंकि ये तो पपेट्स हैं, इनको तो उठा के कोई दे देते हैं, ये वजीर रख लो या ये आगे बात कर लो, इन्हें उसकी बैकग्राउंड नहीं पता होती। ये आज के इस आपके फैसले में बताएं कि पाकिस्तान की सियासत किधर जाएगी? मैं पपेट वगैरह किसी को नहीं कहता हूँ, मेरा मेरा ये नहीं है। बहरहाल वो जैसे भी आए आ गए, हमने उससे पहले बहुत से लोगों को भी देखा है और इनको भी देख रहे हैं। लेकिन 18वीं तरमीम के साथ जो है वो खेलना, वो मुल्क के साथ खेलना होगा। 18वीं तरमीम
ये तो आइन के साथ भी मजाक होता रहा है। आइन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। आइन पाकिस्तान के इत्तेहाद की, यकजहती की, सलामती की दस्तावेज है। हम अफराद किस लिए हैं? इदारों को आइन तश्कील करता है, इदारों की तश्कील आइन करता है। इदारे आइन की तश्कील तो पार्लियामेंट ने एक दफ़ा कर दिया है। अब उसको आप पार्लियामेंट भी उसको नल एंड वाइड नहीं करार दे सकती है। लेकिन कोई और इदारा, कोई मातहत इदारा या सोवरेन इदारा, हम नहीं कहते हैं कि कोई मातहत है, कोई सोवरेन इदारा भी अगर इटसेल्फ कोई इदारा है तो ये कैसे कर सकता है कि किसी आइन की बेसिक एसेंस को जो है वो ख़त्म कर दे। ये सब मानते हैं ना कि पाकिस्तान का आइन एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक आइन है। तो फेडरेशन की तारीफ ये है कि उसके अंदर जो है वो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, उसके अंदर सूबे होते हैं। हमारे सूबे कौमी वहदतें हैं और हमारे सूबे इकाइयाँ हैं जो इस वफाक की तश्कील करती हैं। और वफाक जो है उसको वो सूबों को मजबूत करता है और सूबे वफाक को मजबूत करते हैं। आप डंडा उठाकर, लाठी उठाकर, बंदूक उठाकर लोगों को हाँक नहीं सकते। आप छड़ी लेकर लोगों को हाँक नहीं सकते। लोग अपनी ख्वाहिश के साथ, अपने दिल के साथ और पूरे जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ वो रियासत के साथ चल रहे होते हैं। और वो हमारी जो सरजमीन है उसकी ओनरशिप लोगों के पास है, ये इदारों के पास नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जनाब इस सरजमीन की जो ओनरशिप है वो किसके पास है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान एक तारीखी रियासत है और पाकिस्तान इंडस की कदीम तरीन तहजीब की नुमाइंदा रियासत है। हमारी जो लुगत होती है, कल मैं सुन रहा था, 2-3 दिन पहले सुन रहा था ख्वाजा आसिफ को, उनका ताल्लुक सियालकोट से है और वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि हमने तो हिंद सिंध में ये बात नहीं सुनी। तो जब वो हिंद सिंध कह रहे थे तो सिंध जिसको कह रहे थे वो पाकिस्तान था। वो पाकिस्तान सिंध जहाँ से निकलता है और वहाँ आकर जब छोड़ वहाँ जब आकर दराए ली में गिरता है, आकर लद्दाख में आकर गिरता है, वहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान जो है वो चलते चलते जीवनी और तुफ्तान तक पहुँच जाता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के साहिलों तक और बलूचिस्तान के पहाड़ों तक पहुँच जाता है। तो पाकिस्तान एक इकाई है और पाकिस्तान की एक इकाई जो है वो मुख्तलिफ तहजीबी इकाइयों का मजमुआ है। हम उनसे इनकार नहीं कर सकते। अब आपके पास एक लैंग्वा फ्रेंका उर्दू मौजूद है, अब आपके पास एक सराइकी ऐसी जुबान मौजूद है जो वहाँ कोहिस्तान में बोली जाती है, सवात में बोली जाती है, यहाँ सिंध में बोली जाती है, ठट्ठा में बोली जाती है, बलूचिस्तान में बोली जाती है, चारों सूबों में बोली जाती है। एक आपके पास एक राब्ते की ये भी एक जुबान मौजूद है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं आप कि जनाब सूबों को जो है वो बेतौकीर कर दिया जाए, उनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएँ, एक मजबूत मरकज़ की बात की जाए, एक बड़ी ताकतवर डंडे वाली शख्सियत को बिठा दिया जाए और वो डंडे से सबको सीधा करेगी। डंडे से ना अयूब खान सीधा कर सका, ना याह्या खान सीधा कर सका, ना ज़ियाउल्लाह खान कर सका, ना मुशर्रफ खान कर सका। कोई खान जो है वो डंडे से सीधा नहीं कर सकता है, ना सीधा करना उसके बस में होता है। वो तारीख के कचरे में जाकर पड़े होते हैं। अयूब खान तारीख के कचरे में पड़ा हुआ है, ज़ियाउल हक तारीख के कचरे में पड़ा हुआ है, याह्या खान तारीख के कचरे में पड़ा हुआ है। परवेज मुशर्रफ खान, कोई उसका नाम लेवा है, कोई उनका नाम लेने को तैयार है। तो आप ये ना समझें कि जनाब जो है आप अगर हम लोगों की तहजीब को, उनकी शनाख्त को, उनके अख्तियार को, उनके अपने वसाइल को, उनके अख्तियार लेकर हम जो है वो एक ताकतवर किस्म का मरकज़ बना लेंगे तो हम जो है मज़े कर लेंगे। ये मज़े आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। पाकिस्तान की इकाई के साथ, पाकिस्तान की वहदत के साथ, सारे सूबों के मिलाकर साथ रखने के जज्बे के खिलाफ आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कोई इस तरह का। और ये कौन होते बेचारे, इनके पास तो 6-7 सीटों की अक्सरियत है, वो भी मेंगल साहब चले गए, बाकी 2 इत्तेहादी बैठे हुए हैं। अगर 2 इत्तेहादी इधर कर ले, अभी तो ये बजट पास कराएं, खैर से चलें, अब देखते हैं कि क्या होता है। एक तो ये फैसला आ गया है, इस फैसले पर जो मुतालबा शुरू हुआ है कि फलां फलां इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन इसके अलावा आप बजट में जाते हैं
اگر آپ کے ساتھی دوست جن کو آپ نے بہت چٹکیاں لی ہیں اور جن کی آپ نے پیٹھ پر چٹکیاں لے کر زخم کر دیے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو پھر آپ بجٹ کیسے پاس کریں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ میں اس کے اس میں نہیں ہوں کہ بجٹ پاس نہ ہو، لیکن اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ کی حکومت تو کلیپس کر جائے گی، بیٹھ جائے گی. پھر آپ کے جی پاس اتنی بھی وہ نہیں ہے، نہ آپ کا سینٹ میں آپ اقلیت میں ہے، قومی اسمبلی میں آپ کے پاس معمولی اکثریت ہے، اور آپ دعوے کرتے ہیں آئین کی سب سے اہم ترین جو ترمیم ہوئی ہے اس کو آپ نل اینڈ وائٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، نہ ایسا سوچنا چاہیے. جی لغاری صاحب، میں مریم نواز اور مونس الہی کی ملاقات پہ بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہوں گا. دیکھیں صوبوں نے جو بھی کام کیا، اپنے اپنے صوبوں میں کام ہو رہا ہے، اچھا یا برا. صوبہ سندھ NFC ایوارڈ 229 ارب وہ اس کے کھا گئے. 3 ہسپتال ہیں جو 2011 سے لے کے 9 سال کے اندر اندر تک ان کی کارکردگی اتنی بہتر ہو گئی کہ 15 ارب تک، 1 ارب سے لے کے 15 ارب تک ان کا بجٹ بڑھ گیا. ان کے NICVD NIC جناح ہسپتال جو NICVD کے کراچی میں ایک لیاری میں اس کا بن گیا ایک اور کیمپس، پھر 8 پورے سندھ میں بنے، پھر NIC ہو گیا، پھر جناح ہاسپٹل، پھر آپ کا سائبر وہ جو نائف وہ فیسلٹی، اور یہ سارا کچھ اتنا کچھ انہوں نے سندھ میں کام کر دیا. اب سپریم کورٹ کا پچھلے سال جنوری کا فیصلہ ہے، انہوں نے ہی کیا، چالاکی کی کہ بھئی اچھا کام کر رہے ہیں تو واپس لے. فیصلہ تو کرا دیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے کچھ سٹیپس ہیں اور وہ کر نہیں رہے. ان سٹیپس میں ایک یہ سٹیپ بھی ہے کہ جتنا سندھ حکومت کا پیسہ لگا ہے وہ بل تو انہیں دینا پڑے گا. یہ مفت میں ہی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے NFC ایوارڈ کا 229 ارب کھا گئے، ادھر سے ان کا بل تو وہ اب لمبو میں ہے. وہ اسپتال سپریم کورٹ کے احکامات پہ پورے نہیں جا رہے، تو وہ اسپتال ابھی سندھ تو چلا رہا ہے لیکن احکامات ہیں کہ آپ لے لیں، یہ بھی نہیں ہے. جی لغاری صاحب کا کنیکشن ابھی ڈاؤن ہو گیا. میں پھر انشاءاللہ لوں گا. یہ جو سوالات ہمارے ساتھیوں کے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ اس کو بھی ایڈ کریں گے. لغاری صاحب کا مجھے لگتا ہے ہاتھ وغیرہ لگ گیا ہے. مجھے امید ہے کہ دوست جو ہیں وہ محظوظ ہو رہے ہوں گے. لغاری صاحب جیسے ایک بھٹوئسٹ کے ساتھ ایک صحافت کے، جیسے میں نے کہا خود ایک اکیڈمی ہے، ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. اگر تو ان کا سسٹم چل جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ انہیں، حالانکہ کافی دیر ہو چکی ہے، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے اتنا قیمتی اپنا وقت دیا ہے، شاید وہ دوبارہ ایڈ ہو جائے تو انشاءاللہ جو 1-2 سوال اور اہمیت کے حامل ہیں وہ ہم ان سے پوچھیں گے. اور بی بی شہید کی برتھ ڈے ہے پرسوں، 67 برتھ ڈے، تو وہ بے نظیر بھٹو کی بے نظیر برتھ ڈے پہ ہم نے انہیں خراج تحسین پیش کیا، انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا، لغاری صاحب نے پیش کیا. اور یہ دیکھیں یہ وہ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، آئین کی خاطر، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے علاقے میں، لڑکانہ میں یا کوئی نہیں، پورے پاکستان کی بات کی، مسلم امہ کی بات کی. اور آئین کو جس طرح انہوں نے ہر حساب سے پروگریسو، دینی، سب کچھ آئین میں چیزیں ڈال کے وہ ہمارے سامنے ایک سٹرکچر کھڑا کیا، اور اسی پہ پاکستان چل رہا ہے. اور جو ایٹم بم دیا اسی پہ پاکستان اس وقت مضبوط دفاع کہتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ لمبی ایک ہے وہ ہٹا دیں تو آپ میرے خیال میں فیصل آباد کی گھنٹہ کر کے آگے ایسے منہ اٹھا کے کھڑے ہوں گے. میرے خیال میں اب لغاری صاحب کو میں ایک دفعہ پھر چیک کر لیتا ہوں فون کر کے، شاید ان کا سسٹم بالکل ڈاؤن نہ ہو گیا یا کوئی کال آ گئی ہوگی آئی تھنک ان کو، ادروائز جی ہاں ان کا سسٹم نہیں لگ رہا. تو میرے خیال میں نشست کافی ہو گئی تھی. یہ یا تو یہ تیسری دفعہ میں چوتھی دفعہ پروگرام کر رہا ہوں، یہ ایک لمٹ سے جا کے میرے خیال میں کریش بھی کر جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اینی آپ دوستوں کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو یہ نشست پسند آئی ہوگی. رابطے میں رہیں اور اپنی سجیشنز دیتے رہیں. یہ چیز میں یوٹیوب پہ بھی چڑھا دیتا ہوں، وہ میرا ابرار امیر والا جو کوئی ایسا پروفیشنل چینل نہیں ہے، ایک نارمل چینل ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. جسٹ پریس سبسکرائب، کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی کچھ لگتا، تو اس کو بھی
آپ جو نا سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دونوں جگہ پہ معلومات ملتی رہے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. پاکستان زندہ باد. قائد اعظم پائندہ باد.